کوفہ کی گلیوں میں خاموشی چھائی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے انصاف کی ایک تیز آندھی چل رہی تھی۔ وہ زمانہ تھا جب ظلم کرنے والے اپنے ہی سائے سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ مختار ثقفی کے حکم سے ایک ایک قاتل کربلا اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا تھا۔ جن ہاتھوں نے آل رسول پر ظلم کیا تھا، اب وہی ہاتھ لرز رہے تھے۔ کوئی جزیرہ کو بھاگنے کی کوشش میں تھا، کوئی رات کے اندھیرے میں چھپا بیٹھا، مگر انصاف کی تلوار ہر طرف گردش کر رہی تھی۔ ملک ابن نصیر بدی وہی شکی اور بے باک انسان تھا جس کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی پہننے کی حد تک بے حرمتی پہنچی۔ شہادت کے وہ المناک دن جب صبح کی روشنی آہستگی سے میدان کارزار پر پھیل رہی تھی، امام حسین تنہا، بے سہارا اور پرسکون کھڑے رہے۔ کوئی نہ سرپٹ حملہ کرتا، نہ کسی نے قطعی طور پر اپنا نفس قربان کرنے کی ہمت دکھائی۔ صبح کا ساز خاموشیوں اور خوف کے ساتھ گزرتا گیا۔ کوفہ کے وہی لوگ جو دنوں پہلے نعروں نے آگے تھے، اب جھجک کر پیٹھ پھیر لیتے تھے اور اس عظیم شخصیت کو نقصان پہنچا کر اپنے کاندھوں پر ایک عظیم بے حرمتی کا بوجھ اٹھانے سے کتراتے تھے۔ ہر بار جب کوئی کوفی حضرت کی طرف بڑھتا تو اندر سے کسوٹی، خوف اور شکوک نے اسے واپس بھگا دیا، گویا ان کے دلوں میں شرم بھی اور بزدلی بھی ایک ساتھ جاگی ہوئی تھی۔ مگر بالآخر قبیلہ بنو کندہ کا ایک جنگجو ملک ابن نصیر بدی بیچ میدان آیا۔ اس نے بغیر کثرت سوچ کے اپنی تلوار اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر پر وار کیا۔ اسی وار سے ٹوپی کٹ کر گر پڑی، سر سے خون بہنے لگا اور وہ ٹوپی خون سے لت پت ہو گئی۔ منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والا کانپ اٹھتا۔ امام حسین نے ظلم پر غمگین مگر مستحکم لہجے میں بددعا کی، کہا، خدا ظالموں کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ پھر سادگی اور عظمت الوہ کی مثال دیتے ہوئے آپ نے خون سے نہایا ہوا وہ ٹوپی اپنے سر سے اتار کر بے تکلفی سے زمین پر پھینک دیا اور دوسری ٹوپی پہن لی۔ یہ عمل اس کے اندر کے بلند مقام صبر اور وقار کا مرقع تھا جو زخمی جسم کے باوجود ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا تھا۔ بدی نے جو ٹوپی گرتی دیکھی اسے اٹھایا، گھر لے جا کر دھونے لگا، گویا وہ اس کو افتخار یا شکار جنگ سمجھ بیٹھا تھا۔ مگر جب اس کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں جو خفت اور رسوائی جاگی، اس نے بدی کو نہ صرف جھڑکا بلکہ سخت لہجے میں کہا کہ کیا تو ابن رسول کا چھنا ہوا لباس اپنے گھر میں لائے گا؟ اور اسی ندامت کے تاثر نے بدی کو گھر سے دفع کر دیا۔ اس واقعے نے اس کی رسوائی کو عوامی کر دیا۔ اس کے بعد بدی کی زندگی موت و زندگی کے درمیان قسم پرسی میں گزر گئی۔ وہ سخت مفلس اور کلاش ہو کر رہ گیا، ساری عمر فقر و فاقہ کا شکار رہا۔ اور جب مختار نے کوفہ میں عدل و انتقام کے نام پر کاروائیاں شروع کیں تو بدی اور اس کے چند ہمراہ اشقیاء قادسیہ کی طرف فرار ہو گئے۔ مختار ثقفی نے ان کے خلاف کاروائیاں تیز کر دیں اور مالک ابن عمرو نامی افسر کو ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ انہیں تلاش کر کے پکڑ لایا اور عشاء کے وقت مختار کے سامنے پیش کر دیا۔ منظر مقابلہ سنگین اور فیصلہ کن تھا۔ مختار نے سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آل رسول کے دشمنوں، حسین بن علی کہاں ہیں؟ میرے پاس حسین کو لاؤ۔ تم نے اس بزرگ ہستی کو قتل کیا جس پر نماز میں درود و سلام بھیجنے کا حکم تھا۔ ان قیدیوں نے پچھتاوے یا بہانے کے امتزاج میں کہا، اللہ امیر پر رحم کرے، ہمیں جبراً ان کے مقابلے پر بھیجا گیا تھا، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مگر مختار کے سوالات تیز اور بے باک تھے۔ تم نے اپنے نبی کے نواسے پر احسان کیوں نہ کیا؟ اس پر رحم کیوں نہ آیا؟ انہیں پانی کیوں نہ دیا؟ یہ ملامت ان کے اندر چھپی انسانی وجدان کو بھی جھنجھوڑ دیتی تھی۔ پھر مختار نے براہ راست بدی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو نے امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ ابن کامل نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ یہی شخص ہے۔ اس نشاندہی کے بعد مختار نے سخت سزا کا حکم دیا کہ بدی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں قطع کر دیے جائیں تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر زندگی کی قید سے چھٹ جائے۔ یہ حکم نافذ ہوا اور بدی اسی دردناک حالت میں اور خون بہتے بہتے ہلاک ہو گیا۔ اسی علیحدگی اور عبرت کے ساتھ اس کے دو ساتھی بھی جنگ شمشیر کے سپرد کر دیے گئے اور انہیں قرار گناہ کے مطابق انجام دکھایا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک فرد کی سزا کا بیان ہے بلکہ اس عہد کی اخلاقی بوکھلاہٹ، بزدلی اور پھر عدالت کی آنکھ کھلنے کا عکاس بھی ہے۔ جہاں بظاہر فتح اور شکست، لباس اور علامتیں اہم تھیں، مگر اصل میں انسانیت، شرافت اور انسان کامل کے مقام کی بے قدری کا غمگین قصہ بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ مالک ابن نصیر بدی اور اس کے ساتھیوں کی عبرتناک موت کے بعد مختار ثقفی نے کوفہ میں عدل و انتقام کا سلسلہ مزید تیز کر دیا۔ اس نے اپنے افسر پولیس عبداللہ ابن کامل کو حکم دیا کہ حکیم ابن طفیل تائی کو بھی گرفتار کیا جائے۔
ये वही बदनसीब शख्स था जिसने मक्तले करबला में हजरत अब्बास अलम बरदार के लिबास व असलहा पर कब्जा किया था और यहाँ तक कि इमाम हुसैन पर तीरंदाजी भी की थी। हकीम इब्ने तुफैल अक्सर फख्र से कहा करता था, मेरा तीर हुसैन के पाजामे में अटक कर रह गया था, उन्हें कोई गजंद ना पहुंचा। इब्ने कामिल ने हुक्म के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया और मुख्तार के दरबार की तरफ ले चला। उन्हीं दिनों हजरत अदी इब्ने हातिम ताई, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अपने कबीले के एक निहायत मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग थे, कूफा में मौजूद थे। चूंकि हकीम उन्हीं का हम कौम था, उसके अकरबा फरियाद रसी के लिए हजरत अदी रजी अल्लाह अन्हु के पास जा पहुंचे। वो रोते हुए कस्में खा खा कर कहने लगे, हकीम बेगुनाह है, उसने अहले बैत के खिलाफ किसी अमल में हिस्सा नहीं लिया। हजरत अदी उनकी बातों से मुतासिर हुए और सिफारिश करने पर आमादा हो गए। पहले वो अब्दुल्ला इब्ने कामिल से मिले और नरमी से कहा, अगर मुमकिन हो तो इस नौजवान को छोड़ दो, मुझे यकीन है ये कसूरवार नहीं। इब्ने कामिल ने मुअद्दबाना जवाब दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, अमीर मुख्तार ही इसके बारे में फैसला कर सकते हैं। हजरत अदी ने फरमाया, अच्छा तो फिर मैं खुद मुख्तार से मुलाकात करता हूँ। दरहकीकत इससे पहले भी मुख्तार ने हजरत अदी की सिफारिश पर कई कैदियों को रिहा किया था, मगर उनमें किसी पर बराह रास्त कत्ले अहले बैत का इल्ज़ाम नहीं था। इधर जब हजरत अदी कसरे इमारत की तरफ रवाना हुए तो शहर के बाज शियाने अली रजी अल्लाह अन्हु, जिनके दिलों में करबला का गम अभी ताज़ा था, इब्ने कामिल के पास आए और कहने लगे, हमें अंदेशा है कि अमीर मुख्तार इस खबीस के मुतल्लिक हजरत अदी की सिफारिश कबूल कर लेंगे, हालांकि इसका जुर्म यकीनी है। अगर आप इजाज़त दें तो हम इसे रिहाई से पहले ही अंजाम सज़ा तक पहुंचा दें। इब्ने कामिल ने मुख्तसर कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि वो मुजरिम है तो जो मुनासिब समझो कर गुजरो। चुनाचे उन लोगों ने हकीम को, जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, एक सुनसान जगह पर खड़ा किया। उनमें से एक ने कहा, तूने हजरत अब्बास अलम बरदार के कपड़े उतारे थे, हम तेरे कपड़े उतारते हैं। यूं उस बदबख्त को बरहना कर दिया गया। फिर दूसरे ने कहा, तूने इमाम हुसैन पर एक तीर चलाया था, हम भी तुझे सिर्फ एक तीर मारेंगे। और इसके बाद एक तीर उसके जिस्म में इस अंदाज से पैवस्त किया गया कि वही तीर पैगाम मर्ग बन गया। कहा जाता है कि वो तीर खास साख्त का था, उसके अंदर कई नोकदार पैकान छुपे थे जो जिस्म में घुसते ही फैल गए और उस बदनसीब को वहीं खाक पर गिरा दिया। उधर हजरत अदी कसरे इमारत पहुंचे तो मुख्तार ने एहतराम से उनका इस्तकबाल किया, अपने पास बिठाया और उनके आने का मकसद पूछा। हजरत अदी ने नरमी से कहा, मैं अपने कबीले के एक शख्स हकीम बिन तुफैल के लिए सिफारिश करने आया हूँ। मुझे यकीन दिलाया गया है कि वो बेगुनाह है और उसने अहले बैत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मुख्तार ने संजीदा लहजे में कहा, ए अदी, क्या आप पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता होकर इस अम्र को रवा देखते हैं कि इमाम हुसैन के कातिलों के लिए मुझसे माफ़ी तलब फरमाए हैं? हजरत अदी ने फरमाया, मुझे इसके बारे में गलत इतला दी गई होगी, मेरे इल्म में तो वो बेकसूर है। मुख्तार ने सुकून से कहा, अगर आप फरमाते हैं तो मैं आपकी खातिर उसे छोड़ देता हूँ। अभी ये बात हो ही रही थी कि इब्ने कामिल वहां पहुंच गया। मुख्तार ने पूछा, हकीम का क्या बना? इब्ने कामिल ने सर झुकाकर कहा, अमीर शियों ने उसे कत्ल कर डाला। मुख्तार ने अफसोस से कहा, मेरे पास लाए बगैर उसे क्यों मार दिया गया? देखो जनाब अदी उसकी सिफारिश के लिए तशरीफ लाए हैं और वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी सिफारिश कबूल की जा सकती है। इब्ने कामिल ने जवाब दिया, मैं मजबूर था अमीर, लोगों ने किसी तरह न माना और वो अपने गुस्से पर काबू न रख सके। ये सुनकर मुख्तार खामोश हो गया, मगर फिजा में गमो इबरत की एक घनी लहर फैल गई। तारीख के रावी लिखते हैं कि उस वक्त मुख्तार ने एक जुमला कहा जो कूफा के लिए सबक बन गया, जो कौम जुल्म पर खामोश रहती है वो इंसाफ का हक भी खो देती है। मुख्तार सक़फ़ी के इंतकामी फ़ैसलों का सिलसिला रवां रहा और शहर कूफा में इंसाफ की तेज़ लहर कई मकामात पर नमूदार हुई। इसी ज़िम्ने में एक और संगीन वारदात का तज़किरा लाजिम है, उस्मान इब्ने खालिद जहनी का अंजाम और फिर उमर इब्ने सुबह सैदावी की हलाकत। एक रोज़ मुख्तार ने अपने अफसर पुलिस अब्दुल्ला इब्ने कामिल को हुक्म दिया कि उस्मान इब्ने खालिद जहनी और बिश्र इब्ने सोत काबजी को गिरफ्तार किया जाए।
ये दोनों वही लोग थे जो मक्तले करबला में बहादुरों के साथ लड़े थे और एक मोड़ पर अब्दुर्रहमान इब्ने अकील को शहीद करके उनके लिबास व हथियार कब्जा में ले चुके थे। इब्ने कामिल असर के वक्त बड़ी तादाद के साथ बनी विवाहमान की मस्जिद पहुंचा और वहां लोगों से गुस्से भरकर कहा, अगर उस्मान इब्ने खालिद तुम्हारे हवाले ना आया तो मैं तुम सबकी गर्दन मार दूंगा। बनी विवाहमान ने इल्तिमास की कि उन्हें फुर्सत दी जाए ताकि वो तलाश करें। तलाश शुरू हुई क्योंकि मुख्तार की तरफ से कातिलाने अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ कार्रवाइयों का जोर बरकरार था। उस्मान और बिशर कूफा छोड़कर जजीरे की तरफ भागने की कोशिश में थे। बिलाखिर बनी वहमान ने उन्हें एक इहाते में पकड़ लिया और उन्हें अब्दुल्ला इब्ने कामिल के हवाले कर दिया। इब्ने कामिल ने उन्हें लेकर रवाना होते हुए कहा, खुदा का शुक्र कि मुझे ये काबू मिल गया। जब काफिला बनी हुए जाद के कुएं के पास पहुंचा तो उन दोनों को गर्दन जदनी कर दी गई। लाशें वापस ले जाकर मुख्तार को इत्तला दी गई। मुख्तार ने हुक्म दिया कि वापस जाकर इन लाशों को नजर आतिश किया जाए और जब तक न जल जाएं इनकी दफनाने से रोका जाए। यही हुक्म नाफिज किया गया। लाशें जलाई गईं और ये इबरतनाक अंजाम मंजर आम पर आ गया। इसी तरह एक और कैदी उमर इब्ने सुबे सैदावी का किस्सा भी दिल खराश था। ये वही शख्स था जिसने अब्दुल्ला इब्ने अबी तालिब को शहीद किया था। रात के एक हिस्से में जब शहर सो रहा था, पुलिस उसके मकान पर पहुंची। वो छत पर बेखबर सो रहा था और तलवार उसके पास पड़ी थी। पुलिस ने अचानक हमला करके पहले तलवार पर कब्जा किया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। जब उसे मालूम हुआ कि वो पुलिस के हाथों हैं तो उसने अफसोस भर कर कहा, अल्लाह इस तलवार का बुरा करे, ये मुझे कितनी नज़दीक थी मगर अब कितनी दूर हो गई। उसे मुख्तार के सामने पेश किया गया। रात कसरे इमारत में वो कैद कर दिया गया और सुबह दरबार आम में उसको हाजिर किया गया। लोगों की आंखों के सामने सलासिल व अगलाल में जकड़ा हुआ उसने नापाक तकब्बुर के साथ मुख्तार को मुखातिब होकर कहा, ऐ काफिर व फाजिर, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो तुम जानते कि मैं कमज़ोर नहीं। मेरा दिल चाहता था कि मुझे किसी दूसरे के हाथ से मारा जाए क्योंकि मैं तुम्हें बदतरीन खलाइक समझता हूँ। फिर उसने पुलिस अफसर अब्दुल्ला इब्ने कामिल की जानिब हाथ बढ़ाकर तमांचा रसीद किया। इब्ने कामिल हंसा, उसे मजबूती से पकड़कर मुख्तार से कहा, यह शख्स दावा करता है कि उसने आले मोहम्मद को जख्मी किया है और उन पर नेज़ाबाजी की है। आप इसके मुताल्लिक क्या हुक्म फरमाते हैं? मुख्तार ने सरी हुक्म दिया कि इसे नेज़े मार मार कर हलाक किया जाए। यह हुक्म फौरन नाफिज किया गया और उमर इब्ने सुबह की जिंदगी इसी दर्दनाक अंजाम पर ख़त्म हुई। मुख्तार ने इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलों और उनके मावनीन का कला कमा जारी रखा। तारीख़ की रवायात इस बाब में वसी हैं। जो हज़रात मज़ीद मुख्तार के कारनामों और उस दौर की तफसीलात जानना चाहें, उन्हें मशहूर तारीख़ी मसादिर जैसे तारीख़ इब्ने जरीर तबरी और तारीख़ कामिल इब्ने असीर से रुजू करने की हिदायत की जाती है। यूं एक एक करके वो तमाम चेहरे जो करबला के खून से रंगीन थे अंजाम को पहुँचे। मुख्तार सकफ़ी की अदालत में कोई सिफारिश, कोई रिश्ता, कोई फरीब कारगर ना हुआ। हर जालिम ने वही जायका चखा जो उसने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चखाया था। कूफा की फिजाओं में अभी भी उन चीखों की गूंज बाकी थी जो कभी मजलूमों के खून से दबी हुई थीं, मगर आज इंसाफ की ललकार बनकर उभरीं। तारीख के सफ़हात पर ये लम्हे हमेशा के लिए सब्त हो गए कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम में अदले खुदा की तलवार ज़रूर गिरती है। करबला का बदला लिया गया, मगर ये बदला सिर्फ इंतकाम नहीं था, ये ऐलान था कि हक हमेशा जिंदा रहता है और बातिल मिट जाता है।